Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we will discuss what is comprehension. First of all, what does comprehension word mean? The word comprehension means the ability to understand what you listen or what you read. When you are listening something, you are listening. You are reading something. Now, how much you understand, that depends upon your ability. How do you receive the message while reading a text, or how do you receive the message when you listen lecture or any speech of a speaker? So this is your ability to understand what you listen or what you read. Sometimes we listen so many things at a time, we do not understand what the speaker said. What did the speaker say? So now the ability of understanding what you listen or what you read, it varies from person to person. Some persons comprehend, understand very quickly while after reading a passage or listening once a thing. So reading comprehension is meant for the testing of the power of understanding of the students. Now, power of understanding of the students, what is your power of understanding? Power of understanding, that is comprehension. Comprehension means power of understanding of the students. This is the meaning. When a student studies something, he should try to grasp the meaning of it. Naturally, जब भी कोई स्टूडेंट कोई टेक्स्ट पढ़ता है, लॉन्ग टेक्स्ट पढ़ता है या कोई पैसेज पढ़ता है, पैराग्राफ पढ़ता है, तो what is he trying? He always tries to grasp the meaning of it. He always tries to get the meaning or the message of that text. Such comprehension tests do not require the students to write much. यानी here आपको ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. Because such comprehension tests do not require the students to write much, but require them to have an idea of the reading material and answer the questions in a word, a few words, or a sentence, or by putting ticks, crosses, numbers, or drawing arrows. Yes. So in comprehension, what a student does not need to write much more, but only he requires to understand the material of the text. जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो आप पैराग्राफ और पैसेज पढ़ते हैं, तो उसमें what is the material in that passage? So you are required to understand the message of the text, the essence of the message. What is the message of text? तो उसके बाद that text is followed by some questions. So questions में क्या होता है कि you give the answer in a word or sometimes a few words or a sentence, or by putting ticks, crosses, numbers, crosses, number of drawing arrows. So this is how you give the answers of those questions which are given after a long passage, a long text. So how can you give the answers of those questions after the
given after the text or paragraph, when you understand the meaning of the purpose of the passage of the text, then you will be able to understand, then you will be able to give the answers of the questions. So comprehension एक पैराग्राफ होता है या टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट को आप जब पढ़ते हैं तो पहले तो आपको उसको पढ़ने के साथ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसमें है क्या, what is in this paragraph, what is in this piece of writing. When you come to understand the piece of writing, that what is meant this paragraph, इस paragraph का मकसद क्या है, तो फिर you will be in position to give the answers of the questions which are given in the end of that comprehension. So this is what is comprehension. So again I repeat, comprehension means it is testing the power of understanding of the students. Now, how much you understand while reading a text or listening a speech of a speaker. So from listening and reading, how much you gather, how much you receive. That is the ability of every student. That varies from student to student. It was, you see that, what is comprehension? Now, why is comprehension important? We came to know what is the meaning of comprehension or what is the purpose of comprehension. But now here, the question is, why is comprehension important? Because it increases your reading speed. You have to read a passage, a piece of writing within a limited period, because you will have less time while doing this comprehension during the exam. This is one question. Suppose 10 minutes are required to do this comprehension passage. So what do you need? You need reading speed. If you have practice of reading speed, then you can read very quickly and you will try to understand the purpose of the text very quickly. So now it is not easy job in first time. It means it needs to increase your reading speed. How can you increase your reading speed? When you read so many comprehensive passages again and have practice of reading, more practice of reading, more easy to solve the comprehension. Second, if it helps you to accurately interpret, analyze the information from the text. So interpret and analyze. Now, whatever is information in the piece of writing, in the piece of text. So if you have practice of doing comprehension, it will help you to get or to receive the information from the text very quickly, because you can interpret. You can interpret and you see that analyze, आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट में क्या इंफॉर्मेशन है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन है. It helps to draw main conclusion from the text. तो आखिर में एक कंक्लूजन है. तो आपने टेक्स्ट पढ़ा. What is the conclusion of the text? When you conclude the text,
with some purpose, you achieve the targets, or you have received the aim of the passage, then it will help you to analyze the information of the text. Now here are tips and techniques to perform better in reading passage comprehension. Now reading passage comprehension तो आपको एक मिल गया कि ये भाई रीडिंग पैसेज है, ये आपके comprehension के लिए। तो उसमें in this slide some tips have been given. If you act on these tips and techniques, then you can perform better in reading passage comprehension. So this is very important. How can you gather the message, the purpose of the text from the reading passage comprehension? From the reading passage comprehension. आप एक आपको रीडिंग पैसेज कॉम्प्रिहेंशन दिया है, आपने एक पढ़ा, सर से गुजर गया, पता नहीं क्या है. So it is not easy to understand passage, comprehension passage, unless you had no practice of reading comprehension passage. अभी ये हमने comprehension passage के ऊपर हम लेक्चर कर रहे हैं कि comprehension है क्या. Comprehension तो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े. किस चीज में अंडरस्टैंडिंग बढ़े? आपकी रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आपकी सुनने की कुवत बढ़े, सुनने की कुवत और समझने की. आपने सुना तो सही, मगर अंडरस्टैंड नहीं किया. अब अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एबिलिटी चाहिए, और वो एबिलिटी कब आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे? जैसे जब आप पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को पढ़ते हैं बार बार, और जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को पढ़ते हैं बार बार, मुख्तलिफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसमें एक तो आपकी वोकेबुलरी बढ़ती है, आपके प्रोनाउंसिएशन बेहतर होते हैं, आपकी और बहुत सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का आप मकसद और उसमें जो चीज़ें हैं कौन सी हैं वो आपको आ सकती है. तो इसमें तो इसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि while reading you underline the fact mentioned in the text. Some facts should be underlined. टेक्स्ट तो होता है ना, उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, there are so many words. So when you feel that this is a fact that is mentioned in this long text, so you underline that text, you underline that fact only. Okay. Now उसके बाद अगर एक स्टोरी है, कोई नैरेटिव इवेंट है, तो उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द नेम ऑफ कैरेक्टर्स. तो कैरेक्टर्स के नाम जो हैं वो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उस कैरेक्टर्स के the questions are given in the end of the passage comprehension, in the end of the text. उसमें आपको फिर वो जो आपने नेम अंडरलाइन किए हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं अंडरलाइन किए हैं, तो अब उसमें sometimes in text some places are mentioned, so just underline those places also. Day and date mentioned in the text. Day and date mentioned in the text. तो कभी कभी उसमें डेज भी आते हैं, डेट्स भी आते हैं, फिलहाल सन में, फिलहाल तारीख को, फिलहाल महीने में ये इवेंट हुआ, तो उसको भी आपने अंडरलाइन करना है. तो इससे ये क्या होगा कि अभी आपको फैक्ट्स का भी पता लग गया,
आपका जो कंसंट्रेशन है या अटेंशन है, वो पूरा फोकस आपका जो है, that you put your focus on the facts, on the names of characters, on the names of places, day and dates, all are in your mind. So in this way, you can calculate or you can conclude the whole story. Suppose, for example, simple question, that is, who was the king? If there is a story of a king, तो नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कुछ नाम्स लिखे हैं, एक कैरेक्टर सैंपल। तो उसमें अगर क्वेश्चन है कि हु वाज द किंग, व्हेन डिड इट हैपन, ये वाकया कब हुआ, हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी etc. These are known as factual questions. While reading the text, you can underline the names, the characters, the names of places, and facts. अच्छा, इसके बाद reader should try to extract the meaning, to find out the meaning of underlined, italicized, bold, printed words and phrases. So there are bold printed words, there are some phrases, those should be also underlined. Reader should reread. Reader should reread. Again, आप उसको पढ़ना पड़ेगा. The difficult paragraph. If you feel कि, oh, this is very difficult paragraph, don't be puzzled. Don't be confused. Nothing is difficult. It needs only your full concentration, full attention, and reading with full concentration. पूरी तवज्जो से, पूरी यकसुई से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको फिर वो समझ में आएगा. अब इस तरह की प्रैक्टिस पहले आपको करनी चाहिए पड़ेगी. अगर पहले आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें आपने यकसुई से एक सांस में एक क्विक रीडिंग आपने दी. आप देखेंगे, आप पढ़ के देखें कोई भी पैराग्राफ, तो आधा पेज आप पढ़ेंगे तो फिर आप जो है ना वो ऐसे अप एंड डाउन होते जाएंगे, फीलिंग बोर, बिकॉज टायर्ड फील करेंगे, बिकॉज वी हैड नो प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग. अभी आप खुद असेस करें या आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आपने इंग्लिश के पैराग्राफ कितने बार पढ़ा है. रिजल्ट है 0, आंसर है 0. मैंने पढ़ा ही नहीं है पैराग्राफ, तो अचानक एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाए और कह के इसको पढ़ के आप इसको अंडरलाइन करें, तो हाउ आप इसको आंसर दें, हाउ कैन इट बी पॉसिबल. सो इट इज नॉट पॉसिबल. तो इट नीड्स प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एंड रीडिंग. Pass. So again, these are fonts to pay attention in a passage. What we talked here, कि reader should try to extract the meaning of the underlined italicized. ये जो हमने अभी इसको डिस्कस किया कि italicized और bold printed words को हमने phrases को अंडरलाइन करना है, वो हैं क्या. तो ये यहाँ इस स्लाइड में आपको देखने में आएंगे कि यहाँ fonts to pay attention in a passage, italicized इस तरह से लिखे जाते हैं थोड़ा टेढ़े से.
जब आप खुद प्रिंट करते हैं टाइप, तो उसमें टाइप्स ऑफ लेटर्स लिखे जाते हैं, उसको हम इस तरह से हम करेंगे, थोड़े टेढ़े होंगे तो इटलाइज कहे जाते हैं, और नॉन इटलाइज अगर सीधे सीधे हम करते हैं, जिस तरह ये लिखा है ऊपर से लिखा है फॉन्ट्स टू पे अटेंशन इन पैसेज, ये नॉन इटलाइज है। और सेकंड जो है बोल्ड, खुद बोल्ड वर्ड जो है किस तरह से बोल्ड है, क्लियर है, तो इस तरह से हेडलाइंस होती हैं बोल्ड। और फिर अंडरलाइन किस तरह हम करते हैं, किसी जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो इस तरह से लकीर लगानी है, ताकि फिर हम आगे चलकर इन द एंड ऑफ टेस्ट जब हम कंक्लूड करेंगे और उसको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के आंसर्स देंगे, तो उसमें ये हमें हेल्प करेगा। क्योंकि एकदम हम जब उन वर्ड्स को हमने यूटिलाइज को वर्ड्स को भी नोट किया है, बोर्ड वर्ड्स को भी हमने नोट किया है, अंडरलाइन भी की हुई है फैक्ट्स कुछ, तो ये सारी चीजें जब हम फिर उस पैसेज आंसर क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे, तो हमारा जो अटेंशन है वो इन अंडरलाइन और बोर्ड और यूटिलाइज्ड वर्ड्स के ऊपर चला जाएगा। ये कंटिन्यू है, टिप्स एंड टेक्निक्स। To perform better reading passage comprehension, now try to understand the meaning of text. This is the main thing, very important thing. First of all, the reader of the text should try to understand the meaning of the text. अब टेक्स्ट की मीनिंग ही नहीं आएगी हमें, उसका पर्पस क्या है, उसमें क्या मैसेज है, तो फिर हम कैसे जो है वो उसको कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टक और वरी, डू नॉट स्टक, आप अटक नहीं जाओ, स्टक नहीं करो, यानी पढ़ते पढ़ते आप रुक जाते हो स्टक करके। और वरी इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड मेंशन इन द टेक्स्ट, नाउ यू फाइंड some new words in the text. Oh, this is a new word, what does it mean? So here it is suggested, this is very main important, you should not stuck or worry. Okay, if you don't know the meaning of words, there's solution. Simple solution of this problem is to reread the previous sentence and the next sentence. अब एक सेंटेंस में बीच में एक new word has come, you do not understand the meaning of that word. अब ये तो नहीं होगा कि आप you will refer the dictionary there. तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उसका जो पहला सेंटेंस है उसको पढ़ो, फिर सेकंड सेंटेंस उस वर्ड के बाद है उसको भी पढ़ो, यानी द प्रीवियस सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस. दिस विल गिव यू an insight about the meaning of words. This will give you an understanding. You can guess the meaning of words. तो आपने एकदम टेक्स्ट पढ़ा, आप पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ें और एक वर्ड स्टॉप करो, डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम, रीड फर्स्ट प्रीवियस सेंटेंस, देन रीड द सेकंड सेंटेंस वेयर द वर्ड इज, then read the next sentence. In this way you read, then the meaning of the text will automatically, the purpose of the text will be automatically come in your mind. So this again is the purely business of reading, practice, practice, practice. If you practice, जितनी आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी रीडिंग की, इतना ही आपको ज्यादा comprehension पैसेज सॉल्व करने में आसानी हो. Tips and techniques to perform better in reading passage. This is again third slide. Continue. Now, in previous slide, we came to know if you find new word,
Don't stuck. There's no need to worry. There's no need to be worried. Here again ये क्या कहता है कि now you finish the reading, you finish the text reading. आपने text को पढ़ लिया. अब क्या है? Now you are going to find out the answers of the complex questions. Then passage demands you to read once as an alert reader to increase comprehension level of the text. Alert reader to increase means to increase your understanding level of the text. क्योंकि उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर्स देने और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में डिफिकल्ट, तो उस डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे फिर? इट नीड्स यू टू रीड once as read it again, to read the text again. But now again, when you are reading again, read it with more concentration. Focus. Pay attention on the facts, figures, names, days. Try to digest whole text till you understand the passage properly or very well. Now you will be in position to answer those complex questions also. So complex questions require you to read it once as an alert reading. Once as an alert reader. Now you should become an alert reader just to increase your understanding level of the text. Now second slide. Slowly and gradually, you should increase vocabulary power to comprehend a written paragraph. Now again, you try to understand it. To comprehend a written paragraph means to understand a written paragraph. For understanding a written paragraph, what do you need? You need slowly and gradually increase vocabulary power. How much you are increasing your vocabulary power, then you can comprehend or you can understand the written paragraph very easily. So solving the comprehension passage, you need vocabulary. And vocabulary कैसे आएगी आपको? Naturally, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, जितना आप ज्यादा समझेंगे, जितने आप न्यू वर्ड्स को देखेंगे, डिक्शनरी में रेफर किया है, फिर उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में डेली कन्वर्सेशन में यूज किया है, तो वो सारे वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी now you have increased. Now it will help you to solve the comprehension passage. How can you deal with the comprehension passage? अब तो ये हो गया कि पहले तो हमने ये देखा कि what is comprehension. फिर उसमें टिप्स आ गए कि अगर न्यू वर्ड्स आते हैं तो हमें वरीड नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले वाला प्रीवियस सेंटेंस पढ़े, फिर बीच वाला सेंटेंस, जिस सेंटेंस में वो डिफिकल्ट वर्ड है वो सेंटेंस पढ़े, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े. तो इसमें आप जो है ना कैन गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. सो देयर इज नो नीड टू बी वरीड. अच्छा, उसके बाद अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं and you feel difficult to answer the complex questions, तो इसके लिए फिर आपको it requires rereading. हो सकता है आपको थर्ड टाइम भी रीडिंग देनी पड़े,
क्योंकि जब तक आपको पूरा आप यू ग्रेस्प नहीं करते उस पूरे पैसेज को, तो आप आंसर्स क्वेश्चंस जो है वो सेटिस्फैक्टरली नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हो गया। अब एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको मिला है, उसको आप किस तरह डील कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें हमें कुछ रीडिंग टेक्निक्स चाहिए। देयर आर सम टेक्निक्स। हर चीज के लिए टेक्निक्स होते हैं। बात करने के टेक्निक्स होते हैं, स्पीच के टेक्निक्स होते हैं, मशीन चलाने के लिए टेक्निक्स होते हैं, लेक्चर देने के लिए टेक्निक्स होते हैं, स्किल्स होते हैं। तो इसी तरह से एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डील करना, सॉल्व करने के लिए भी you need some techniques. Then you can handle the passage. Determine the factual content also, and also analyze grammatically, knowing the word meaning and the details of the passage. So जब वो contents, what does this passage contain? What are the contents in this passage? तो you naturally you try to know the word meaning and you try to collect all the details of the passage. ये एक तरीका है कि how can you comprehend, how can you deal the comprehension passage. उसके लिए जोसेफ एडिसन एक दफा उसने कहा, क्या कहा जोसेफ एडिसन? रीडिंग इज टू माइंड। अब मैं अगर ये मुझे समझ में नहीं आया, रीडिंग इज टू माइंड, रीडिंग इज टू द माइंड what exercise is to the body. अब एक दफा नहीं समझ में आएगा तो फिर हम कहेंगे reading is to the mind what exercise is to the body. जिस तरह exercise is very important for your body to maintain the health of your body, to make your body strong, in the same way to make your mind strong, that needs reading. Reading is very important for mind as exercise is very important for the body. तो इसमें एक अजीब सा इवेंट था मेरे लाइफ में। some years back, मेरे छोटे दो भतीजे थे, तो मेरे पास आ गए। तो मैं ऐसे बैठे बैठे चिट चैट करते हुए मैंने उनसे पूछा, एक बड़े भतीजे पूछा, बेटा हम अपने जहन को किस तरह मजबूत कर सकते हैं? तो उसके जहन में एकदम गया कि बाबा तेल की मालिश से हम उसको जहन को मजबूत कर सकते हैं। अब एक हद तक तो उसका जवाब हंसी वाला भी था और ठीक भी लग रहा था कि क्योंकि पूरे जिस्म को हम अगर मसाज करते हैं और जहन को भी, अपने सर को भी तेल लगा के मालिश करते हैं, तो इससे हमारी मसल्स ऑफ सर के मसल्स भी खुलते हैं और ताकतवर होते हैं। तो ये तो एक फिजिकली वन। तो दूसरे भतीजे ने कहा, जो छोटा था, उसने कहा कि बाबा मैं बताऊं? हाँ बताओ। जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे इतना हमारा माइंड ज्यादा मजबूत होगा। तो अब उसने जिस्मानी मजबूती को कहा कि तेल मालिश करेंगे। इसने मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए रीडिंग की बात की कि जितनी हम ज्यादा रीडिंग करेंगे इतना हम मेंटल पावर को बढ़ा सकते हैं। तो अब ये तो एक मिस्टर जोसेफ एडिसन की बात है। मैंने तो प्रैक्टिकली ये क्वेश्चंस किए थे अपने भतीजे को और ये सच साबित हुए कि जो बड़ा भतीजा था उसने बहुत अपने सर को मालिश किया। तो इसका मतलब ये है कि उसने भी तो कर दिया, मगर वो कॉन्ट्रैक्टर है और रोड्स और बिल्डिंग्स को बनाता है। और सेकंड जो है वो अपना दूसरा उसने कॉमर्स का सीए कर लिया और उसमें एक अच्छी सी पोस्ट ले ली। तो खैर ये तो एक है बात से बात निकली कि आप अपने जहन को मजबूत कर सकते हैं जब आप ज्यादा रीडिंग करते हैं, क्योंकि रीडिंग करने से यू गेट नॉलेज, यू गेट इंफॉर्मेशन, एंड व्हेन यू गेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज,
then you gain confidence, you increase your confidence. So whenever you speak, whenever you have meeting with anybody, if you have fund of knowledge, if you have bank of information, your mind is full of information, knowledge, तो आप कहीं भी बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई भी पैसेज आपके सामने आ जाता है, आप उसको एकदम फटाफट टिक 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 करके पढ़ जाते हैं और समझ जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होल पैसेज और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस होल मैसेज, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस पैसेज, व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट क्वेश्चंस विल अराइज इन दिस पैसेज। अब आपको एक समरी दी गई है, आप ऑफिस में प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एक समरी दी गई, आप सेक्रेटरी के ऑफिस में एसओ लगे हुए हैं या एडिशनल सेक्रेटरी लगे हुए हैं, एक आपको समरी दी गई कि भाई ये समरी है, इसको आप मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसको पढ़ें और इसके जो जवाब सवाल पूछे गए वो सवाल के जवाब दो। तो आपको कैसे आप जवाब देंगे? हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस when you have the power to read the text quickly and to understand the materials of the whole text very quickly and clearly, then you can give the answers of questions. Skills to solve comprehension passage. Now here, how can we deal the comprehension? कि कॉम्प्रिहेंशन को डील करने के लिए हमें रीडिंग टेक्निक्स चाहिए, और रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमने जोसेफ एडिसन का कोटेशन दिया। यहाँ अब हम देखेंगे कि स्किल्स टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो इसमें स्किमिंग एंड स्कैनिंग, skimming and scanning, these are reading techniques. Skimming and scanning are reading, but skimming and scanning are reading techniques. So skimming क्या है? It requires a quick reading of the passage to determine the general idea, while scanning requires a much slower pace of reading intended to get the main ideas of the specific details. क्या समझ? एकदम पढ़ के गया तो पहले पढ़ा नहीं पढ़ा, जाहिर है। तो अगर हम स्किमिंग रीडिंग टेक्निक जो है यूज करते हैं, उसको कहते हैं जल्दी से क्विक रीडिंग दो एक पैसेज को, और टू डिटरमिन करो तो उसमें जनरल आइडिया है क्या। एक पैसेज पूरा क्विकली रीड करेंगे आप, तो उसमें आप डिटरमिन करेंगे कि इसमें जनरल आइडिया क्या है। आपको एक जनरल आइडिया आ गया कि इस टेक्स्ट में जनरल आइडिया कौन सा डिस्कस किया गया है, तो उसके बाद उसकी जगह पे ऑन कंट्रारी स्कैनिंग रिक्वायर्स मच स्लोअर पेस ऑफ रीडिंग। उसमें स्लोअर पेस ऑफ रीडिंग मतलब आस्ता आस्ता लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आपने पढ़ना है, ताकि उसमें आपको मेन आइडियाज और स्पेसिफिक डिटेल्स जो दी गई हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें कि इसमें मेन आइडियाज कौन सी हैं। उसमें जनरल आइडिया, जनरल ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल व्यू ऑफ द टेक्स्ट, मगर इधर मेन आइडियाज। अब मेन आइडियाज में और जनरल आइडियाज में क्या फर्क है? जनरल आइडिया में पूरा जनरली इस टेक्स्ट में क्या डिस्कस किया गया है, और मेन आइडियाज का मतलब है इस टेक्स्ट में कौन सी मेन आइडियाज हैं या स्पेसिफिक डिटेल्स कौन सी हैं, वो आपको पढ़ने। तो अच्छा, उसमें स्किमिंग में डिक्शनरी इज नॉट इनकरेज्ड, उसमें डिक्शनरी आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी, यानी डिफिकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन तो कर सकते हैं, बट स्कैनिंग रीडिंग में आपको एक आस्ता आस्ता पढ़ेंगे ताकि आपको मेन आइडियाज का पता चले और स्पेसिफिक डिटेल्स का पता चले, और फिर वहाँ आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग चाहिए तो उधर ही आप डिक्शनरी रेफर कर सकते हैं।
ताकि आपको पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाए, तभी आपको पता लगेगा कि इसमें मेन आइडियाज और स्पेसिफिक डिटेल्स क्या हैं। तो ये हो गया आपका स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब नॉन वर्बल सिग्नल्स, एक होते हैं वर्बल सिग्नल्स और एक होते हैं नॉन वर्बल सिग्नल्स। वर्बल कम्युनिकेशन आपने सुना होगा, द कम्युनिकेशन विच यू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, and non-verbal communication means the communication which you convey, the things, ideas which you convey through your body actions, through your parts of body. तो ये कोई इसमें एग्जामिनेशन पेपर में तो नहीं आए, मगर it is very important to be familiar with this technique also. You can the text is not only conveyed by the means of the words, मगर नॉन सिर्फ वर्ड्स के जरिए ही मैसेज ऑफ द टेस्ट कन्वे नहीं हो सकता, मगर उसमें जो नॉन वर्बल साइंस हैं वो भी अगर आपको समझ में आएंगी, उसको उनका मकसद भी आपके जहन में आएगा, तभी आपको उस टेक्स्ट का सही पर्पस या एम आपके जहन में आएगी। So like underlining, bold print, italics are layout features like headings, subheadings, and captions, all of which could serve as a pointers to meanings. तो ये non-verbal signals. Skills to solve comprehension passages. उसके बाद आपको द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट दिया गया है, तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट. It could provide a clue to its meaning. तो क्लू का मतलब ये है आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफाई करेगा, एक क्लू मिल जाएगा ना आपको सॉल्व करने के लिए। एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है कि भाई मैं क्लू देता हूं आपको, अभी आप ट्राई करो। तो स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट को जब जो है ना वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, द क्लू टू इट्स मीनिंग. सम स्टार्ट विथ टाइटल एंड सब टाइटल. अब एक टेक्स्ट जो है वो एक टाइटल से शुरू हुआ, तो ये टाइटल जब आया तो ये आपको क्लू है, आपके क्लू है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉट या आइडेंटिफिकेशन सही लफ्ज है, इंडिकेशन है. टाइटल इंडिकेट्स, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स, टाइटल इंडिकेट्स तो कि ये टेक्स्ट किस चीज के बारे में बात करेगा. आफ्टर दैट देयर इज द इंट्रोडक्शन. टाइटल के बाद क्या आता है? द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है? Introduction is the starting or beginning information about the title, the body. Introduction के बाद फिर body आती है, supporting sentences आते हैं, जैसे आपने पढ़ा है पैराग्राफ में कि टॉपिक सेंटेंस आता है, that we call introduction. फिर सपोर्टिंग सेंटेंस आते हैं, that we call body. सपोर्टिंग सेंटेंसेस makes body. उसके बाद in the end it followed by conclusion or summary. So introduction, body, followed by conclusion, followed by end, closing. तो ये इनको समझने की जरूरत है.
The introduction mostly informs the reader about what he or she can expect. So after reading the introduction, you can expect something. What will be in this text? The body consists of paragraphs, each dealing with one aspect of the subject matter and linked in a logical manner. अब टेक्स्ट में अगर 4-5 पैराग्राफ्स हैं तो हर पैराग्राफ में एक क्या होता है, डीलिंग विथ वन एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जो टाइटल है उस टाइटल के बारे में एक आइडिया और एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है एक पैराग्राफ में. सेकंड पैराग्राफ में अगेन आपको सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द टाइटल वो डिस्कस किया गया है. तो इस तरह से थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में सारे पैराग्राफ्स में हर पैराग्राफ में एक न्यू आइडिया डिस्कस होती है, एक न्यू एस्पेक्ट ऑफ द टाइटल डिस्कस होता है, और सेकंड दूसरे पैराग्राफ में a new idea, a new aspect of the text or of the title. In the third paragraph, again, you start with a new idea that relates to the topic sentence or that relates to the title. तो पैराग्राफ में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आइडियाज हैं मुख्तलिफ, मगर सारे के सारे आइडियाज, सारी चीजें वो दो ऑल आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टाइटल. तो वो एक आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं एंड लिंक्ड इन अ लॉजिकल मैनर. सिस्टमेटिकली एक आपने आइडिया दिया, फिर दूसरा आइडिया आप सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करें तो वो उसको जो है ना लिंक करेगा, कॉन्साइड करेगा, उसके साथ रिलेटेड होगा. तो नंबर 1 इसको देना चाहिए आइडिया को, फिर दूसरी आइडिया, फिर तीसरी आइडिया. तो ये इनको 1 बाय 1 भी इस तरह रखना है कि पहले किस आइडिया को आना चाहिए, फिर कौन सी आइडिया डिस्कस करनी चाहिए, फिर कौन सी तीसरी आइडिया. तो इस तरह से तो हम अगर ये कहें कि हम एक ऐसे लिख रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें भी 4-5 पैराग्राफ्स होते हैं, तो 4-5 आइडियाज होती हैं. तो पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन. तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट जो है वो किस तरह होता है इसको समझना पड़ेगा. फिर नाउ कम्स द टर्न ऑफ पंक्चुएशन थ्रू द एस्पेक्ट, दिस एस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट को treated on the module on grammar. It is important for candidates to know that reading according to the punctuation also aids comprehension. अगर आप रीडिंग करते हैं और you observe the punctuations, then those punctuations will help you to understand the comprehension text very easily. Thus, when the reader understands the meaning and usage of punctuation marks, it will be easier for him or her to understand the grammatical structures, hence comes to terms with the meaning of passage. तो मीनिंग ऑफ पैसेज को आप अंडरस्टैंड तब करेंगे जब आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं इन द लाइट ऑफ पंक्चुएशन. कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कामा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ जो है इन्वर्टेड कामाज हैं. जैसे एक डायरेक्ट स्पीच है, माय फादर सेड, तो कामा देते हैं, प्लीज गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, इन्वर्टेड कामाज बिगिन, इन्वर्टेड कामाज ओवर. तो इसको कि भाई ये ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैं, तो इनको हमने कौन से पंक्चुएशन रखे, इन्वर्टेड कामाज में. और फिर माय फादर सेड कामा, तो मतलब क्या कहा उसने, वो पंक्चुएशन ब्रैकेट में हम इसमें उसमें रुकेंगे नहीं, कामा की जगह रुकेंगे नहीं, तो हमें ये नहीं पता लगेगा ये कौन कह रहा है.
So punctuations also helps us, punctuation marks also help us to understand the structure very easily, and finally we can reach the meaning of passage easily. Now, this is passage of dolphins. Here I have given a sample of a comprehension passage. So we are now going on break for 15 minutes. Then we will start with this passage, dolphins. के एक comprehension passage क्या है? Comprehension page nothing. It's a long text. एक टेक्स्ट और एक पैराग्राफ दिया जाता है. उस पैराग्राफ में कुछ आइडियाज, कुछ चीजें डिस्क्राइब की जाती हैं. तो उन चीजों को हमें पढ़ के समझना है, सोचना है, समझना है. फिर उसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें टिक के जरिए, यस और नो के जरिए और क्रॉस के जरिए आंसर्स को देने हैं, या एक वर्ड में देने हैं या कुछ वर्ड्स में देने हैं. तो यहाँ इसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस MCQ. सो दिस पैराग्राफ ऑफ डॉल्फिन्स आपने सुना होगा. वो डॉल्फिन्स जो पानी का एक मैमल है, स्पीसीज है, वो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है कि वो किस तरह उधर रहता है, किस तरह काम करता है, किस तरह बातें करता है आपस में. तो हाँ, बातें भी करते हैं. ये फिर हम जस्ट आफ्टर ब्रेक वी कैन रीड इट. तो आई एम गोइंग.